refuge in Allah from the devil, the outcast. In the name of Allah, who is the most beneficent and ever merciful. Respected Pirani Uzam, Islamic scholars, and all of my listeners, Assalamu alaikum to all. Today, we all are gathered here under this showering of God's blessing on the occasion of annual Urse Mubarak Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ये जितने भी मुरीदैन यहाँ आज आए बैठे हैं, ये जितने भी मुरीदैन यहाँ आज आए बैठे हैं, वो भी सोए नहीं हैं ज़ेरे ज़मीन, वो भी उरस सजाए बैठे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। I welcome to all of you on the behalf of Qibla Pir Sayyid Ashik Hussain Shah Sahib Hamdani Rahmatullah Alayhi। साथियों, पीरे म्याल भी कमाल ही कर गए। दोस्तों, पीरे म्याल भी कमाल ही कर गए कि अभी साहिब मसनद थे और इंतकाल भी कर गए। अभी साहिब मसनद थे और इंतकाल भी कर गए। So don't think that you all are now alone. No. All the members of family Shah Hamdan, including me, are always here for all of us lovers and devotees of Qibla Pir Sahib. In last year, Qibla Pir Sahib, I was ordered by him, Qibla Pir Sayyid Ashik Hussain Shah Sahib Hamdani. I was ordered by him that you have to address in front of my devotees, in front of my followers, in your formal costume, in your official costume. But my bad luck, due to my work commitments, unfortunately, I could not come in his presence. But nowadays, I put his will into the practice. In the presence of his son, Pir Sayyid Zubair Hussain Shah Sahib Hamdani. In the presence of his brother, Pir Sayyid Niyaz Hussain Shah Sahib Hamdani. I am here to share some of my own thoughts, some of my own feelings. So it's my humble request to all, especially the Islamic scholars, please don't take it any negative illusion. When I pray to Allah Almighty, I never ask, I never pray for the forgiveness of Qibla Pir Sahib. It's my own implementation. Whenever I pray to Allah Almighty, I only pray for his elevation of highest rank in paradise. Because it's my faith, he is already a nominee of heaven. He has the membership of paradise. So that's why I only pray to Allah Almighty for his elevation of highest rank. And it's my completely faith. When my uncle, my Tayajan Pir Sayyid Ashik Hussain Shah Sahib Hamdani enter in the gate of paradise, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Farooq, Hazrat Usman Ghani, Hazrat Maula Ali, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are awaiting for him with their open arms, and inshallah they will say that, come Ashik Hussain, come. We know that you are too tired from the world to raise the head of religion, to raise the head of Islam. नारे तकबीर, मेरा ईमान कहता है
कि जिस टाइम पर मेरे ताया जान जन्नत में दाखिल होंगे, रसूल अल्लाह के चारों यार अपने खुले बाजुओं से मेरे ताया जान का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। आशिक हुसैन हम जानते हैं, खैबर से कराची तक, डोर टू डोर, स्टेप टू स्टेप, यू आर टू टायर्ड, तुम बहुत थके हो, दीन की सरबुलंदी के लिए चले हो, यू आर टू टायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड टू ओनली रेज द नेम ऑफ इस्लाम. So that's why I only pray for his elevation of highest rank only. Another thing I understand very well today is that how Hazrat Bilal fainted and fell on the ground with a fit of rage. साथियों, आज आपसे खिताब करते हुए जो चीज मुझे समझ आई है कि हजरत बिलाल हबशी बेहोश होकर किस तरह से गिर गए थे, आज मैं वो पॉइंट समझाऊंगा. आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत बिलाल लीव्स द मदीना एंड वेंट टू हिज नेटिव लैंड. वंस ही केम बैक टू विजिट द ग्रेव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हसन एंड हजरत इमाम हुसैन स्ट्रांगली स्ट्रगल. जब रसूलुल्लाह की वफात के बाद हजरत बिलाल हबशी मदीना को छोड़ते हैं और बहुत अरसे बाद एक मर्तबा से फिर मदीना आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर पर, तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन फरमाइश करते हैं कि बिलाल give the call of prayer, azan do. It was Hazrat Bilal habit that he used to look at the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he reached on the takbir ashhadu anna Muhammad rasulullah. अल्लाह सुभान. ये हजरत बिलाल की आदत थी कि जब आप अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे तो आप चेहरा अनवर को देखते थे. When Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain strongly struggled, you have to give the call of prayer. He agreed. शहजादों की ख्वाहिश पे आप आमादा हो गए. लेकिन जिस टाइम पे हजरत बिलाल ने अजान दी ना, and when he reached on the described takbir अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब वहां पहुंचे हजरत बिलाल turned his look at empty space, he fell down to earth, he fainted in a fit of rage. जब अशहदु अन्ना मोहम्मद पे पहुंचे, चेहरा मोड़ा और रुखे यार नजर ना आया, वहीं पे गिरे और बेहोश हो गए. आज जब मैं अपनी स्पीच के अंदर whenever I mentioned the name of my love पीर सैयद आशिक हुसैन शाह हमदानी and I saw his seat empty on the stage, I feel the pain of Bilal. आज जब मैं पीर साहब का नाम ले रहा हूं और मुझे मेरा प्यार, मेरा आशिक, मेरा महबूब, मेरा बाप, आज मुझे जब यहां पर मुझे इस मकाम पर पहुंचाने वाला, आज जब यहां पर मुझे वो नजर नहीं आ रही, तो मैं समझ रहा हूं कि बिलाल क्यों गिरे थे. कहां से शुरू करूं फसाना, कहां पे तमाम करूं. काश कि तू मेरे सामने आ, एक बार तुझे सलाम करूं, एक बार तुझे सलाम करूं. The watch in my hand is not in the working condition. ये जो घड़ी आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये डेड है. Even it's not tell me the time whenever I need. ये मुझे वक्त नहीं बता सकती, ये चलती नहीं है, और मैं इसको पहन के सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता हूं. उलमा हजरात ने जो बयान किया कि मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट हिलाई, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बतौर वकील अपने खुदा के हजूर जब पेश होऊंगा ना, तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि ऐ मेरे मौला, मैं उस लॉ चैम्बर से था, मैं उस लॉ चैम्बर से था जिसने गाजी मुमताज हुसैन शहीद का केस लड़ा. वाह वाह. मैं उस लॉ चैम्बर का हिस्सा था
जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ अनथक कोशिशें की आपको जालिमाना FIRों से बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी चैम्बर का हिस्सा हूं जिसने इस बार भी उलमाए इकराम को सुप्रीम कोर्ट में अकेला नहीं छोड़ा। The watch in my hand is not in the working condition, even it's not tell me the time whenever I need, but this watch is belong to the wrist of Qibla Shah Sahib। ये घड़ी पीर साहब की अता करदा है। He give me for some maintenance and repairing issues। और जैसे मेरे भाई ने बताया कि मैं बहुत लाडला भतीजा था, तो उन्होंने मुझे दी कि बेटा ये ठीक करवा लो। मैंने कहा पीर साहब नो इट्स माइन। पीर साहब मेरी हो गई, मेरे हाथ में आ गई। और फिर खुद ही मैंने तमस्करन बोला हाउ कैन आई यूज इट, इट्स एक्चुअली नॉट टेल मी द टाइम व्हेनेवर आई नीड, इट्स टोटली डेड। मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूंगा पीर साहब, ये वक्त तो नहीं बता सकती। He replied me back with the historical sentence which made my life। ऐसा जवाब दिया कि जिसने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बतौर भतीजा मेरी जिंदगी संवार दी। पीर साहब ने फरमाया पुत्र ये तुझे टाइम तो नहीं बताएगी, ये तू जब इसको देखेगा ये तुझे वक्त तो नहीं बताएगी, लेकिन जब तू इसको देखेगा ये तुझे तेरी औकात जरूर बताएगी। My son, advocacy is your profession. Whenever you are arguing in the front of any justice, this watch will remind you who you are, from where you belong, what you are actually। जब बेटा तेरा वकालत पेश आए, जब भी किसी भी जज के सामने खड़ा होकर जब आर्गू करेगा, तो हमारे बहस का अंदाज भी यही होता है जिस तरह से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। तो जब मेरा बेटा तेरी नजर इस घड़ी पे पड़ेगी तो तुझे याद आएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं किस फैमिली का हिस्सा हूं। तो कम अज कम इतना याद रखना कि हमेशा हक वाले के साथ खड़ा हूं। एंड दिस सेंटेंस मेक माई लाइफ। इस जुमले ने मेरी जिंदगी बना दी। The last message for all of his devotees, for all of his lovers and followers, don't think that no, he is in grave, so we cannot treat you like him. No, कभी ये मत सोचना कि पीर साहब तहे मजार चले गए तो अब आपको उन जैसी मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा। Never, never think about it। सोचिएगा भी मत। मेरी बात याद रखिएगा, वो कला का काम होता है दलील देना। गंदुम का एक दाना, the grain of any seed or the grain of wheat, when you put it on your palm, it's just one piece, it's just one grain। गंदुम का कोई दाना जब आप अपने हाथ पे रखेंगे तो वो एक गंदुम का दाना होगा ना। गंदुम का एक दाना, जिम्मेदार बैठे हो, गंदुम का एक दाना जब आप अपने हाथ पे हथेली पे रखोगे तो वो एक दाना होगा, लेकिन जब आप उसे किसी जमीन में बो आएंगे तो वो एक के बदले आपको 35 दाने देगा। मेरी बात नहीं समझे आप। जिन पीर साहब को तहे मजार दफन करके आए हैं ना, अगर वो हयात में आपकी एक बात सुनते थे तो अब वो आपकी 35 बातें सुनेंगे। गंदम का दाना जिस तरह दफन कर देने से अपनी ताकत को दुगना कर देता है ना, मेरे ताया जान आपके फैज को दुगना करेंगे। Never think about it। You are not alone। All the members of Shah Hamdan family adorning the stage in front line are always with you, but they all are with their broken backs, with their total broken backs। कमरें टूट चुकी हैं हमारी, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। इन लास्ट एक पंजाबी का शेर कहकर मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल करूंगा। ऑल ऑफ द डेवोटीज जिन्होंने मेरी जान के साथ टाइम गुजारा, मेरे ताया जान के साथ टाइम गुजारा,
वो उनकी लाजमन आदत व खसाइल से वाकिफ होंगे। पीर साहब की एक आदत में इस शेर में बयान करने लगा हूं, तवज्जो करिएगा। तेरे बाजों महफिल बड़ी मुस्तरब, पीर साहब कोई मजा नहीं। तेरे बाजों महफिल बड़ी मुस्तरब, ठाठ महफिल दी आके वधा जामिया। तेरे बाजों महफिल बड़ी मुस्तरब, ठाठ महफिल दी आके वधा जामिया। सिख पुरस्कार गए हिन तेरे वास्ते, इन्हां दी अखां नू दीद करा जामिया। सिख पुरस्कार गए हिन तेरे वास्ते, इन्हां दी अखां नू दीद करा जामिया। आदत क्या थी कि अखां नू नूट के आलमे तसव्वुरात विच, ये मेरे पीर साहब की आदत थी कि अखां नू नूट के आलमे तसव्वुरात विच कोई कुरानी आयत सुना जावे, हाथ दे के पटके नू वल अपने अंदाज विच, आशिक शाह जी तू एक बार आ जावे, दे के साफे नू वल अपने अंदाज विच, आशिक शाह जी तू एक बार आ जावे। I pray to my Allah Almighty, may grant him highest rank in Jannah. Oh my Allah, I pray to you, please grant him the villas besides the villas of Hazrat Abu Bakr Siddiq. May Allah grant him the castle beside the castle of Mawla Umar Farooq. May Allah grant him the garden besides the gardens of Hazrat Usman Ghani. May Allah grant him the streams of milks and honey beside the streams of Hazrat Mawla Ali. Wa ma alayna illa al-balagh.